within the blinds. Video. Good afternoon, one and all. Today we are having one of the dynamic person with us, and we are very proud to say that I'm very proud to say that he's our alumni, and he has started his career in brand marketing. So right now he is working. He is a freelancer and he is a digital marketer. So let me introduce himself. He is Professor Siddiqui, and he was a manager turned digital marketer. He has 4 years of experience in commerce and brand management, and right now he is self-employed and he is freelance. He is doing the services as a freelancer, as a digital marketer, helping the American and the British business owners for growing their online business with the help of organic and paid digital marketing methods. Okay, so let me welcome Mr. Professor Siddiqui. I request Nazia to give a bouquet to Mr. Professor Siddiqui. I welcome Mr. Professor Siddiqui to enlighten us about his my story about motivational one session by a successful entrepreneur. So I welcome Professor Siddiqui. Needs we don't mic. You can over there you can start. Use that. We can move around. Yeah. Hello everyone. Good afternoon. Assalamualaikum. So I was pretty excited when I got call from Ayaz sir that I'm gonna get a lecture. I'm gonna get a chance to stand in front of you guys and talk about my experiences. So are you guys comfortable in both the languages, English and Hindi, if I mix it up? Yes. So before coming here, I was thinking, what should I talk about? Okay. So I was expecting this stage to be like empty so that I can roam around. I usually just roam around the stage and deliver the lectures, the talk. So basically, first I will talk about myself. So my name is Faisal, and I'm a freelance digital marketer. I've been serving clients across United States of America, UK, United Kingdom, mainly in London and Australia. I also had clients from Canada, but now those guys are no more with me. So, I graduated from this college in 2014, and I'm going to get you through my entire journey, right from graduating in 2014 from this college as a B.Pharm graduate, and just landing up here being a freelance digital marketer. ये जो प्रोसेस है मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. तो मेरे मतलब अगर देखा जाए तो ये 8 साल है, 8 years. It's been 8 years since I graduated. तो 8 साल की जो लर्निंग है मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और हर पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी लर्निंग क्या है उसमें. तो फर्स्ट पार्ट विल बी अबाउट डेवलपिंग माय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्टेज डेयरिंग, and the second will be about product and brand management, my career, how I started my career in product and brand management despite being from a not so good college, not this one but the one which I have done MBA from. And उसके बाद फिर I also started a company, a health company, a supplement company that didn't work out well due to pandemic. That I will also talk about briefly. उसके बाद I started my career in freelancing, digital marketing, and I'll talk about that as well. And in the end, we'll have some resources. I hope you guys have notebooks and pens with you, so that I'll tell you some resources. I'll name some resources. You can write it down. Yeah.
So yeah, back in 2014, again guys, yeah. So back in 2014, when I graduated here, I moved to Hyderabad. I'll give you guys time to Planted. I was mainly interested in business back then. तो मैंने सोचा कि यार M.Com वगैरह तो नहीं हो पाएगा. Let's get into management MBA. So I just moved to Hyderabad. वहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है टाइम्स. तो वहाँ पर मैंने कैट के लिए MBA के लिए जो कैट लगता है उसके लिए मैंने प्रिपरेशन के लिए मैं चला गया हैदराबाद. So I was staying in a apartment. I was sharing that apartment with 6 other folks. और those guys were struggling engineers. MCA जो master वो वाले, those guys call themselves engineers in India. So I was sharing my apartment with them. और those guys were desperately searching for jobs. बहुत they were like, most of them were from poor families, and they wanted to get started with some earnings. So they were desperately finding jobs, and they were also doing some courses alongside. तो मैं वो क्या करते थे कि आपने हैदराबाद का अगर आपको पता होगा तो वहाँ पर हाईटेक सिटी नाम का एक एरिया है. तो वो हाईटेक सिटी में मोस्टली कॉर्पोरेट ऑफिसेस है, सब मतलब बड़े बड़े बिजनेसेस के. तो वहां पर क्या होता है कि वॉक इन इंटरव्यू रहता है. जो समझो ये सेल्स सपोर्ट आता है ना, टेक्निकल सपोर्ट. आप जैसा डेल आपका समझो कल कंप्यूटर है आपका खराब हो गया तो आप जो कॉल सेंटर पे कॉल करते हो, तो उसके लिए जॉब्स रहते हैं. तो उसके लिए ना कोई प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं रहता. उसके लिए यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू फिल द फॉर्म एंड यू कैन सिट फॉर द इंटरव्यू. दैट्स कॉल्ड वॉक इन इंटरव्यू. तो ये जो इंजीनियर लोग थे मेरे साथ, दे यूज्ड टू गो एंड दे यूज्ड टू अटेंड दोज इंटरव्यू. तो मैं भी बोला यार मैं भी जाता हूँ. तो मैं भी उनके साथ चला गया. although I was not having that background. तो मैं गया वहाँ पर. तो पहली कंपनी थी टेक महिंद्रा. तो वो लोग सब वहाँ पर वो दे रहे थे इंटरव्यू देने के लिए. those guys went. तो मैं भी गया उनके साथ और मैं बोला देखते हैं, ट्राई करते हैं ऐसे ही एक्सपीरियंस लेने के लिए. I've been fascinated about this thing that I always want to explore stuff, explore things. तो मैं गया और जब मैं इंटरव्यू के लिए बैठा, द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू दैट इज यूजुअली दे चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है. तो जब मैं बैठा तो मैं द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी द फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. एंड बिलीव मी आई कुड नॉट ओपन माय माउथ. मतलब मैं ऐसा हैंग हो गया. मैं बोला यार चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए क्या है. मतलब अपने बारे में नहीं बता पाया मैं, और मैं अपने आप को इतना भारी समझ रहा था. वो दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि यार आई एम एक्चुअली नथिंग. तो उसके बाद में मतलब मैं तो हैदराबाद गया था वो एमबीए का एंट्रेंस करने के लिए, लेकिन वो एक तरफ रह गया. मैं बोला यार काम करते हैं अपन सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते हैं इंटरव्यू वगैरह. तो मैंने क्या किया, आई वाज देयर इन हैदराबाद फॉर अराउंड ईयर. वो एक ड्यूरेशन में मैंने 20 to 25 इंटरव्यूज दिए. IBM मतलब बहुत बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें टेक सपोर्ट के लिए मैं बस जाता था. मेरे को कोई जॉब वॉब नहीं करनी थी, मैं बस जाके इंटरव्यू देता था. और मैंने हैदराबाद में कोई भी वॉकिंग, मतलब ऐसा तो नहीं बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू थे, लेकिन बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू मैंने अटेंड किए. और वहां से मेरे को मिला बिग बूस्ट इंटरव्यू के लिए. मतलब इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो मतलब वो चीज मतलब मेरे को बहुत ज्यादा मैंने दिल पे ले लिया था. तो उसकी वजह से मैंने इस पर काम किया. तो यहाँ पर आप लोगों के लिए लर्निंग है कि अगर आप इंटरव्यू स्किल्स आपकी सुधारना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये आई बिलीव दैट एवरीवन हियर इज टू अर्न मनी इन फ्यूचर, राइट. मतलब हर कोई पढ़ाई कर रहा है पैसे कमाने के लिए, तो व्हाई नॉट मेक सम गुड मनी. तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जैसे हम लोगों को, क्योंकि हम लोग मोस्टली इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता हमारा. मतलब वी आर मोस्टली इन साइंस और समझो आप एमबीए कर रहे हो तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कि आप मतलब इंटरव्यू के लिए या फिर आपकी सॉफ्ट स्किल्स प्रिपेयर करें. लेकिन यहाँ नहीं मिलता. तो इसके लिए अगर ऐसा आपको समझो, इफ यू वांट टू डू दैट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अटेंड एज मेनी एज वॉक इन इंटरव्यू हैपनिंग इन द सिटी. यहाँ पर भी होंगे, औरंगाबाद में भी
देयर आर गुड कंपनीज, तो यहाँ पर भी आप जाकर जस्ट प्रैक्टिस इट आउट. ओके, तो so that was my phase when I was in Hyderabad. तो क्या हुआ कि हैदराबाद के बाद I moved to Mumbai. वहाँ पर MBA करने के लिए I took admission. तो मैंने ये सोचा कैट में मैं इतना कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही मैंने वो बुक देखा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, तो मैथ्स मेरा कुछ ठीक नहीं था. तो मेरे को समझ में आ गया कि ये अपने बस की बात नहीं है, तो let's skip this part and let's do something else. तो मैं बोला क्या करते हैं कि छोटे से कॉलेज से MBA कर लेंगे और साइड बाय साइड जॉब करेंगे, ऐसी गाड़ी चलती रहेगी. तो मैं MBA में एडमिशन अलामा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एक कॉलेज है, मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन मतलब वो ऐसे क्या होता है MBA कॉलेज के ना रैंकिंग्स रहते हैं, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 10, तो वो रैंक में नहीं आता, लेकिन इट्स अ गुड कॉलेज, वहाँ पर विजिटिंग फैकल्टीज वगैरह वो अच्छे आते हैं. तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया. अब मैंने सोचा कि साइड में जॉब करते हैं. तो जैसे ही मैंने एडमिशन लिया तो उसके लिए 2-3 महीने बाकी थे वो कॉलेज शुरू होने. तो मैंने सोचा यार 2-3 महीने क्या करते हैं. तो 2-3 महीने के लिए मैंने ना मेडिकल स्टोर ज्वाइन कर लिया, मतलब एज अ फार्मासिस्ट, क्योंकि अपने पास तो डिग्री थी, वो डिग्री नहीं वो लाइसेंस था. तो मैं बोला यार उसको वेस्ट क्यों करना, उसको भी काम में जाते कुछ सीखने भी मिलेगा. तो मैंने 1.5 महीना मेडिकल स्टोर पे जॉब किया मुंबई में. साइन 50,000 रुपीज आई गॉट फॉर वर्किंग फॉर 1.5 month. तो उसके बाद क्या हुआ कि आई जस्ट गॉट द एडमिशन इन MBA और आई थॉट कि चलो लेट्स गेट अ जॉब, लेकिन जॉब नहीं मिल पाई. तो मेरे को फ्रेंड सर्कल ऐसा मिल गया वहां पर, 1-2 फ्रेंड ऐसे मिले, दे वर लाइक मी. तो क्या हुआ, मेरा जो कॉलेज था वहां से मरीन ड्राइव आपको पता था मुंबई में, तो वो वॉकिंग डिस्टेंस पे. तो हम लोग मतलब सुबह में हम लोग वॉक करने जाते थे वहां पर. तो वो दोस्तों के साथ मैं वहां गया एंड वी वर डिस्कसिंग, वी वर सिटिंग ऑन द मरीन ड्राइव एंड डिस्कसिंग के मतलब क्या करते हैं यार, हमने MBA कैसे साथी कॉलेज से मतलब ले लिया इतने क्या करते. तो हमने क्या किया, मेरा एक दोस्त था, ही इज इन दुबई नाउ. तो वो और मेरा फ्रेंड व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू गो टू फैंसी रेस्टोरेंट्स, फैंसी 5-star hotels and restaurants. We used to just save money to buy those expensive stuff. जैसे मतलब गए कोई रेस्टोरेंट में गए और bought a 500-600 rupees coffee just to get a feel of that ambience and get a feel of that just get experience of how rich people hang out, how rich people what they do, what the culture was, what the standard gap, वो सब जानने के लिए used to just go and explore. और जब मैं MBA कर रहा था ना, तो मेरे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रेगेलो, ही इज नो मोर. वो मेरे सबसे फेवरेट प्रोफेसर थे और ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टाटा टेलीकम्युनिकेशन. तो मतलब वो भी मेरे फेवरेट थे और मैं भी उनका फेवरेट स्टूडेंट था. मतलब मैं उनका फेवरेट ही था, मतलब बहुत सारे लोग थे तो वो एक्चुअली सबको ही बहुत अच्छे से करते थे. तो क्या हुआ है MBA में क्या होता है कि आपको बहुत प्रेजेंटेशन बहुत रहते हैं, आपको हर हफ्ते प्रेजेंटेशन देना पड़ता है. कोई भी एक टॉपिक लो, एक ग्रुप बनाओ और यू हैव टू डिलीवर. तो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो सर ने बोला यार तूने ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया, पर तेरी जो स्टाइल है प्रेजेंटेशन देने की, एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छी है, कंटेंट कुछ भी नहीं था, सब बेकार था, अंदर मैंने ऐसे कचरा भर के रखा था. वो तूने बेकार किया, लेकिन तूने प्रेजेंटेशन अच्छा किया ना. तो उन्होंने मेरे को ना एक रिसोर्स बताया कि तू ना पब्लिक स्पीकिंग में कुछ कर, मतलब यू कैन डू समथिंग अबाउट इट. तो उन्होंने मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया. तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कि toastmaster.org, टोस्टमास्टर इंटरनेशनल. ये नॉन प्रॉफिट यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वेयर यू कैन इनहांस योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. तो इसके ना एक्चुअली वो एक जो क्लब है औरंगाबाद में भी उसका एक क्लब है. मैं आपको बता दूंगा, आप फेसबुक पेज पे जाके चेक कर सकते हो. मैंने वहां पर भी स्पीच दिया था एंड आई वॉन द बेस्ट स्पीकर अवार्ड इन औरंगाबाद आल्सो. तो क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है बेसिकली, और आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, मतलब आपको स्पीचेस देनी पड़ती है. मतलब फॉर एग्जांपल यू बिकेम मेंबर, तो आपको ऐसे 10-12 आपके पास चांसेस रहते हैं कि 10-12 आप स्पीचेस प्रिपेयर्ड स्पीच कर सकते हो आप. तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको चांस मिलता है कि आपकी लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन, मतलब पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आप इनहांस कर सकते हो. तो वो ना मैंने वो वाला क्लब ज्वाइन कर लिया एंड आई बिकेम मेंबर ऑफ दैट. मैंने पहली स्पीच जो दी थी, तो आई वॉन बेस्ट स्पीकर अवार्ड फॉर दैट स्पीच. तो यहाँ पर तो मैंने आई ऑल्सो डन स्टैंड अप कॉमेडी. कुणाल कामरा का आपने नाम सुना होगा,
ही ऑल्सो नोज मी वेरी वेल और वो मेरे मेंटर थे. उनके अंदर भी मैंने स्टैंड अप कॉमेडी किया है. और अभिषेक उपमान्यू, ये दो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं. तो उनके अंदर मैंने स्टैंड अप कॉमेडी की है. मतलब ओपन माइक रहता है, कोई भी कर सकता है जाके. ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. आप भी जाके एप्लीकेशन दो कि आपको आपका जोक ट्राई करना है. तो क्या होता है बेसिकली, जैसे कुणाल कामरा जैसा स्टैंड अप कॉमेडियन, he'll be on stage, he'll be the host of the show, and you know he'll just try out his jokes, and in the middle he will just call these amateur guys like the one who want to try their jokes. तो आपको 2-5 मिनट का ऐसा टाइम मिलता है, उसमें आपको आपके जोक्स ट्राई करना है. फिर ऐसे ही करके मतलब जहाँ भी सिटी में ओपन माइक्स चल रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके ऐसे ट्राई कर सकते हो. तो मैंने ऐसे बहुत सारे ओपन माइक ट्राई किए, लेकिन फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, वो स्टैंड अप कॉमेडी इज नॉट माय कप ऑफ टी. यू नो आई वाज एबल टू मेक पीपल लाफ इन द फर्स्ट शो, बट आई कैन डू इट लेटर. और बहुत मतलब टाइम लगता है. तो मेरे को समझ में आया कि आई वांट टू डू दैट. लेकिन ये जो चीजें थी ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ. ये क्यों मैं आपको मेरी जर्नी बता रहा हूँ, क्योंकि these things have evolved me literally. से क्या हुआ कि जब when I used to go on stage in that Toastmaster community, तो वहाँ पर मेरे को पता चला कि यार इतनी इंग्लिश भी बेकार है. मतलब काम करना पड़ेगा. हम जब बोलते हैं तो ग्रामर की दिक्कत हो जाती है. तो I started working on my English. तो वहाँ से मैंने I started learning lot of things. और क्या होता है कि जब आप Toastmaster के जब आप मेंबर बन जाते हो, तो you can also explore other clubs. इसमें एक्चुअली 2 टाइप के क्लब्स होते हैं. एक कम्युनिटी क्लब. क्लब मतलब ये ऐसा टाइप का क्लासरूम रहता है, मीटिंग्स गोज ऑन इन दोस क्लासरूम्स. तो कम्युनिटी क्लब रहते हैं जहाँ पे हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है. और कॉर्पोरेट क्लब्स रहते हैं जहाँ पर कॉर्पोरेट बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस जैसे रिलायंस जियो का हेड ऑफिस, मॉर्गन स्टैनले, डाउशे बैंक, अमेरिकन बैंक, तो ऐसे जो कॉर्पोरेट ऑफिस रहते हैं इनमें वो क्लब्स रहते हैं, मतलब एम्प्लॉइज के लिए. तो अगर मैं एक कम्युनिटी क्लब का हिस्सा हूँ तो मैं ये कॉर्पोरेट क्लब्स में जाकर स्पीच दे सकता हूँ. तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई बिकॉज I was doing MBA और मेरे को कॉर्पोरेट कल्चर एक्सप्लोर करना ही था. तो I started exploring. अब मेरे पास बहुत सारे डिग्रीज और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं. बेस्ट स्पीकर अवार्ड में जीता हूँ रिलायंस जियो नेशनल पार्क में, जो कि पहले घनसोली में था. अब उन्होंने उसको बैंड्रा कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया है. और मॉर्गन स्टैनली में आई वन बेस्ट स्पीकर अवार्ड. फिर उसके बाद अमेरिकन बैंक, डाउशे बैंक और NMIMS बोल के कॉलेज है, नार्सी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. वहाँ पर आई ट्राई टू गेट एडमिशन, बट आई कुडंट बिकॉज़ उनका क्राइटेरिया भी हाई था और मेरे को मतलब अपना मैथ्स भी अच्छा नहीं था. तो वो हुआ और मतलब वो that thing that evolved me literally very well. तो यहाँ पर आपके लिए लर्निंग है कि जो टोस्टमास्टर जो क्लब है, जो कि औरंगाबाद में यहाँ पर भी अवेलेबल है, सिडको में. आप उसकी मतलब फेसबुक पेज पर, वेबसाइट पर जाओगे, सचिन नाम का मतलब द पर्सन नेम इज सचिन, ही इज लाइक रिस्पांसिबल फॉर रनिंग दैट क्लब. आप उनसे कांटेक्ट करके आप बस एज अ गेस्ट जाके आप मतलब वहाँ बैठ के आप जस्ट एक्सप्लोर कर सकते हो. आप देख सकते हो कि कैसे होता है, क्या होता है. यू आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन स्टेज एज अ टेबल टॉपिक स्पीकर. ऐसा उनके पास वो रहता है, एक कैटेगरी है. तो वो सब आप कर सकते हो. और दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स लिटरली. फिर उसके बाद क्या हुआ कि आई डिड माय MBA और May 2017 was the first day when I got a job. तो मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी वो थी Abbott Healthcare. नाम सुना ही होगा आपने, फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत बड़ी. It's India's second largest company in terms of revenue. और तो वो कंपनी में I got as a sales management training. उसमें जो मेरे सीनियर थे वो यही मेरे यहाँ पे सीनियर थे, मयंक बाहिती, if someone knows him. तो वो मेरे सीनियर थे इमीडिएट. तो हम दोनों मिलकर मतलब जॉब किया मैंने. I did that I did job there for almost a year. वहाँ पर मैं सेल्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग था, लेकिन लिटरली 6-7 महीने तो MR का जो काम रहता है वही किया मैंने. और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मतलब ये कॉर्पोरेट लैडर या फिर लाइफ में आपके करियर में अगर आपको ड्रास्टिक चेंज लाना है या कुछ ना कुछ करना है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने लाइफ में एक बार तो भी सेल्स जॉब करना. लिटरली सेलिंग समथिंग, सेल्स जॉब, क्योंकि इतनी जबरदस्त चीज है ना. मतलब आप बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जाते हो, बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हो. क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल आर इंट्रोवर्ट नाउअडेज. मतलब कैसा बहुत कम लोग रहते हैं जो कि एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, जो दे आर एक्सप्रेसिव. लेकिन बहुत सारे लोग रहते हैं कि they can't even speak up to a random person or the stranger. तो सेल्स स्किल्स हर किसी में आना जरूरी है. और सेल्स स्किल्स क्या है कि आप एक्चुअली सेल्स स्किल्स everyone has to have, because you have to convince the interviewer when you are going for a job, right? You have to convince your boss that your presentation is better enough to be
just move forward. और बहुत सारी चीज़ों में आपको सेल्स स्किल लगती ही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये था मेरा मतलब एक्सपीरियंस के जब when I got a job in Abbott Healthcare, तो I worked as a sales management trainee for almost like 15 months. उसमें अलग अलग रोल्स थे. Then I got a job in product management. तो दरअसल एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं B.Pharm में था तो I had no idea what is product and brand management. तो मैं आपको भी पूछना चाहता हूँ, आप ऊपर करके आप बता सकते हैं कि किसको ये फील्ड के बारे में पता है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट, फार्मा प्रोडक्ट मैनेजमेंट. नहीं, किसी को नहीं पता है. सी आई वाज आल्सो इन द सेम स्टेज. और मैं आपको बता दूं कि मेरे क्लासमेट है बासित शेख. आपको मतलब पता नहीं, आपको तो नहीं पता होगा, सर को पता है. तो ही इज इन ब्रांड मैनेजमेंट राइट नाउ. मेरे साथ में ही मतलब करियर स्टार्ट किए थे. तो ही हैज डन हिज M.Pharm एंड देन ही जंप्ड इनटू प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट. तो आप देख रहे हो मतलब आपको ऐसे भी नहीं है कि अगर आप M.Pharm कर लेते हो तो आप नहीं जा सकते. तो यू हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी देयर. और प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में कैसा होता है कि मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है. एक फार्मा कंपनी रहती है, उसकी सेल्स टीम रहती है. MR होगा, MR तो पता ही होगा आपको, ठीक है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि डॉक्टर के पास जाता है और अपनी मेडिसिन को ही ट्राइज टू सेल दैट ब्रांड. ही ट्राइज टू कन्विंस द डॉक्टर दैट प्लीज प्रेस्क्राइब माय ब्रांड एंड व्हिच इज अवेलेबल ऑन द आउटसाइड मेडिकल स्टोर. तो ये सेल्स होता है. ऐसे पूरे इंडिया में सेल्स टीम ऐसे फैली हुई होती है. तो एक जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, जो MR रहेगा, वो उसका एरिया मैनेजर को रिपोर्ट करेगा. एक एरिया मैनेजर के अंदर में 5 से 6 MR रहते हैं. फिर एक एरिया मैनेजर रीजनल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा. उसके अंडर में 6-7 एरिया मैनेजर्स रहते हैं. ऐसे करके एक स्टेट हेड रहता है जो कि पूरे स्टेट को संभालेगा. ऐसे 17-18 स्टेट हेड्स रहेंगे. फिर वो पूरे स्टेट हेड से नेशनल सेल्स मैनेजर को ऐसे करते हैं. तो ये इनकी हायरार्की रहती है. और ये लोगों का काम रहता है सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना. और जो प्रोडक्ट मैनेजर रहता है, जो ब्रांड मैनेजर रहता है, उसका काम रहता है कि पूरी स्ट्रैटेजी बनाना. वो प्रोडक्ट के बारे में पूरी स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग करना. जैसे आपने देखा होगा वो MR के पास एक बुक रहती है, टैब रहता है, उसमें ऐसे बताता रहता है. अगर किसी ने देखा होगा MR को, उसके पास हैवी बैग रहता है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स को देने के लिए गिफ्ट रहते हैं. तो प्रोडक्ट मैनेजर का ये भी काम रहता है कि कौन से डॉक्टर को क्या गिफ्ट देना है. और ब्रांड के मतलब एक्चुअली क्या होता है कि एक MR है, उसका टारगेट रहेगा 5 लाख, उसको 5 लाख रुपए का सेल करना है, एक टेरिटरी दी जाती है. लेकिन एक प्रोडक्ट मैनेजर को पूरा इंडिया दिया जाता है उसका ब्रांड. जैसा मैं व्हेन आई वाज इन एरिस्टो आई हैड 3 ब्रांड्स. आई हैड एंटीबायोटिक पोर्टफोलियो. तो ड्यूराताज एक ब्रांड का आपने नाम सुना होगा, पिप्रसिन टाजोबैक्टम का एक ब्रांड है, इंजेक्टेबल. अमीकासिन है और डॉक्सीसाइक्लिन का एक है जो कि ICMR ने कोविड-19 में भी उसको सजेस्ट किया था. तो ये मेरे पास ब्रांड थे. ये पूरा पोर्टफोलियो मेरा कुछ 70 to 80 करोड़ का पोर्टफोलियो था. तो आई वाज रिस्पांसिबल फॉर दोस 70-80 करोड़. उसको अगर डिवाइड करें तो हर मंथ मेरे को उतने करोड़ लाना ही है, नहीं तो मैं जवाबदार रहूंगा. मतलब मेरा बॉस मेरे को पूछेगा कि यार ये सेल्स कम क्यों हो रहा है. तो आई हैव टू मेक दोस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज टू बूस्ट द सेल्स ऑफ माय स्पेसिफिक ब्रांड. तो ये काम होता है एक प्रोडक्ट मैनेजर का, एक ब्रांड मैनेजर का. तो एक ब्रांड मैनेजर को एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स. क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरा एक ब्रांड है, तो मेरा ब्रांड कोलकाता में सही परफॉर्म नहीं कर रहा है. तो मैं क्या करूँगा, कोलकाता के जो मैनेजर है उनसे मैं कॉल करूँगा, मैं सर आपका ये नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम, तो वो मेरे को बताएंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है. तो मैं क्या करूँगा, आई विल फ्लाई टू कोलकाता. मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाके खुद फील्ड वर्क करूँगा वहाँ के MRs के साथ. और मैं पता करूँगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है, डॉक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, एक बंगाली डॉक्टर क्या सोचता है, ये मैं सोचूंगा. उसके लिए मैं कोलकाता के लिए अलग स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ. ये टाइप की गिफ्ट दूंगा, ये टाइप की हॉस्पिटल में एक्टिविटी करते हैं. समझ रहे हो, ये सब एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम रहता है. तो अगर इसमें समझो आपको करियर बनाना है, तो इसमें सबसे जो ग्लोरीफाइड जो पर्क्स रहते हैं, those are the dreams of every middle class person, and those are to fly in aeroplanes and stay in 5-star hotels. तो ये दो चीजें आपको प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट में बहुत भरपूर मिल जाएगी. मतलब आप इतना मिल जाओगे कि आप बोर हो जाओगे. You have to fly every 5 days, every 7 days, and you have to stay. मतलब बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लोर करने मिलता है पूरे इंडिया में, क्योंकि पूरा इंडिया आप संभाल रहे होते हो. और हर स्टेट में जैसा जो MR रहते हैं, तो पूरे MR एक जगह आके जमा होते हैं कोई एक होटल में, 5-स्टार होटल में. वहाँ पर उनको मैं मेरे ब्रांड के बारे में बताऊंगा कि न्यू ईयर में हम ये ब्रांड के बारे में क्या कर रहे हैं. फॉर दैट काइंड ऑफ स्टफ यू हैव टू कीप फ्लाइंग. तो ये प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट है. तो ये
आप यहाँ पर आपके लिए ये लर्निंग है कि अभी मैंने आपको बता दिया कि ये फील्ड है, दिस फील्ड एग्जिस्ट, तो आप यू गाइस कैन थिंक ऑफ मेकिंग करियर इन दीज फील्ड्स, इन दिस फील्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट. सो the basic criteria for this is you have to be an MBA and a non-MBA, both is okay, and you have to have sales skills, you have to have some kind of experience in sales, कुछ आपको sales करना पड़ेगा, and for on the basis of your communication skills, your analytical skills and your scientific knowledge, सबसे ज़्यादा important होता है इसमें, मैं आपको बोलना भूल गया कि scientific knowledge. और मैं आपको यहाँ पे बहुत important lesson देना चाहता हूँ कि जब मैं B.Com में था तो I used to bunk lectures. और मैं आपको बता दूं बहुत कम मेरी अटेंडेंस रहती थी, और उसका जो नुकसान मेरे को हुआ आप यकीन नहीं करोगे. जो मैं जो लेक्चर्स को इजी लिया मैंने B.Com में, और जो मैंने लैब में जो मैंने मैनिपुलेशंस किए, और जो मतलब मैंने प्रोफेसर की बात नहीं मानी, मेरे को इतना बेकार उसका बैड एक्सपीरियंस हुआ वो जाके मेरे फील्ड में व्हेन आई वाज अ प्रोडक्ट मैनेजर. क्योंकि क्या होता है कि एक प्रोडक्ट मैनेजर को डॉक्टर से ज्यादा मालूम होना चाहिए. एक एमडी डॉक्टर है, एमबीबीएस एमडी, तो आप देखोगे कि हमारा जो डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट, तो उसमें एक लाइब्रेरी होती है, सेम आपकी लाइब्रेरी की जैसी रहेगी. उसमें एमबीबीएस, एमडी, कार्डियोलॉजी, हर इसके आपको बुक्स दिखेंगे जो कि डॉक्टर पढ़ते हैं. मतलब आपको इवन टॉर्टर जो है वो भी आपको दिखेगी वहां पर, ठीक है, वो रहती है. और नए ब्रांड मैनेजर को पूरा टाइम पहले वहां बिताना पड़ता है. तो मैंने सब स्किप किया था यहाँ पर, और मेरे को वहां पे जाके रात के 11-12 बजे तक आई यूज्ड टू सिट इन ऑफिस एंड आई यूज्ड टू स्टडी व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव, व्हाट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, व्हाट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. ये सब करता था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सब मतलब मेरे को एकदम बेसिक से पढ़ना पड़ता. और आप ये सोचोगे कि यार फिर तुम इंटरव्यू में कैसे पास हुए. तो मैं आपको बताया कि मैंने हैदराबाद में इतने सारे इंटरव्यूज दिए थे कि आई गॉट एन आइडिया कि इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है. आई यूज्ड टू शो so much confidence, I used to play with the interviewers psychology. तो they used to think that अरे साइंस तो ये देख लेगा, कर लेगा. मतलब वो पूछते थे, 2-3 क्वेश्चन पूछा, 2-3 यार मतलब सर साइंस का मैं पढ़ लूंगा, you just look at my other skills. तो मेरी मतलब पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी थी, तो इसकी वजह से मेरे को जॉब मिल जाती थी. लेकिन मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा मेरे को मतलब सता दी. तो यहाँ पर आपकी ये लर्निंग है कि डोंट टेक योर सिलेबस लाइटली. ये मैं दिल से बता रहा हूँ कि मतलब आपको आगे चल के ना आप कोई भी जॉब कर लो, आपको परेशानी जाना ही अगर आपका बेसिक अभी क्लियर नहीं रखते हो. मैंने बहुत लाइटली लिया था, और मेरे को हर चीज मतलब फिर वो 12th की बुक खोलना पड़ता था, मेरे को उसमें से सब पढ़ना पड़ता था, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर जाना पड़ता था. मेरा 1-2 हफ्ता उसमें चला जाता था. और क्या होता था जब हम फील्ड पर जाते थे, वी यूज्ड टू गो ऑन फील्ड विद एमआरस टू मीट डॉक्टर्स. तो सबसे पहले क्या होता है क्योंकि क्या होता है कि जो डॉक्टर रहते हैं तो वो रिलाय करते हैं प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजर पे कि ये आएगा और मेरे को कुछ तो भी नई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देगा. क्योंकि हम लोग दिन भर क्लिनिकल ट्रायल्स पढ़ते रहते हैं, क्योंकि मेरे को क्या करना है कि मेरा मॉलिक्यूल दूसरे वाले मॉलिक्यूल से कैसे बेटर है, मेरे को बस ये बताना है. तो मैं क्या करूंगा, वही उसके बारे में कंटिन्यू पढ़ता रहूंगा, कंपैरिजन करूंगा, चार्ट्स बनाऊंगा, जाके डॉक्टर को मैं प्रेजेंट करूंगा, मतलब एमआर को दूंगा, मैं जाके डॉक्टर को बताओ कि देखो फ्लोक्सामिन इज बेटर देन फ्लोक्सेटिन. मतलब मैं एंटी साइकाइट्री और न्यूरोलॉजी पोर्टफोलियो में था मैं. तो आई हैड ब्रांड लाइक यूऑक्स, फ्लोक्सामिन, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसके लिए. तो मतलब उसमें फिर मतलब ये आता है. तो डॉक्टर क्या रहता है, डॉक्टर रिलाय ऑन प्रोडक्ट मैनेजर मोस्ट ऑफ द टाइम. बड़े डॉक्टर, व्हेन आई वाज इन एमआर, आई वाज इन साउथ मुंबई टेरिटरी, जो ताज होटल है मुंबई का, वो एरिया मेरे को दिया गया था. तो वहां पर जो टॉप डॉक्टर है, तो ऐसा बोला जाता है कि न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट बेस्ड इन दैट एरिया आर द टॉप साइकाइट्रिस्ट इन द एशिया, इंटायर एशिया. डॉक्टर जॉय देसाई जैसा मतलब एक बहुत टॉप न्यूरोलॉजिस्ट है. तो वो भी मतलब ही नोज मी वेरी वेल. तो ये भी मेरे को इतना फायदा हुआ. तो क्या होता है कि ये सब प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजर पे डिपेंड रहते हैं, तो जिसकी वजह से एक ब्रांड मैनेजर को वेल वर्स्ड रहना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. ठीक है, तो ये कहता है. ऊपर से क्या होता है कि जो एमआर लोग भी रहते हैं, तो वो बोलते हैं साले ये लोग एसी में बैठ के दिन भर कुछ काम करते नहीं है, दिन भर हमको डॉक्टर को घूमना पड़ता है, जाके हमको मेडिसिन को बेचना पड़ता है. तो वो लोग भी आएंगे मीटिंग में, कुछ ऐसा पूछ लेंगे, उनको पता रहता है कि यार ये नया प्रोडक्ट मैनेजर आया. तो सर वो डॉक्टर साइकिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेरे को समझ नहीं आता, प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे. और समझ मेरे को नहीं आया तो मैं बोलता हूँ देख के बताता हूँ. तो वो जाएगा बॉस के पास, बोलेगा अरे यार इसको तो कुछ नहीं आता है. बॉस के बॉस को बोलेगा, बात मेरे बॉस तक पहुंचेगी और मेरा बॉस मेरे को बिठाएगा, बोलेगा हाँ जब तक कि तू पूरे ब्रांड के बारे में पढ़ नहीं लेगा तू ऑफिस से घर नहीं जाने वाला. मैं कभी बहुत रात लेट नाइट तक भी बैठा हूँ ऑफिस में. तो ये होता है. तो मैं आपको बोल रहा हूँ डोंट लाइक टेक योर सिलेबस लाइटली. ओके, तो ये था प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया कि यू कैन मेक करियर आउट ऑफ इट. जैसा आप बीफार्म के बाद आइदर एमफार्म कर लो
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दे दो, और या फिर आप एमबीए कर लो, यू कैन डू बोथ स्टफ, और देन यू कैन गेट अ जॉब इन सेल्स. नॉर्मली आप कोई सेल्स कंपनी पकड़ लो सेल्स के लिए, यू गेट अ एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड अ ईयर एंड अ हाफ ईयर और 2 years, देन यू कैन जंप इनटू प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट. क्योंकि क्या है कि मतलब एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं और वैकेंसीज बहुत कम रहती है, तो यू हैव टू बी लाइक वेरी कॉम्पिटिटिव इन दिस फील्ड. तो ये मैंने बताया आपको प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट के बारे में. देन माय फेज केम व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब. तो मैंने जॉब छोड़ा 20 अगस्त में, 2021 के अगस्त में, जब मैंने एक्चुअली लॉकडाउन हुआ था. लॉकडाउन में क्या हुआ कि मैंने आई लॉस्ट माय इंटरेस्ट इन द जॉब. तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर स्टफ ऑन इंटरनेट, क्योंकि जियो आ चुका था और सब इंटरनेट पे एवरीथिंग वाज अवेलेबल. और मैंने एक साथ में एक दोस्त के साथ मिलकर कंपनी भी स्टार्ट की थी. तो कंपनी का नाम था कोलिन्स हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड. मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी भी है. वी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर दैट एंड वी आल्सो हैव जीएसटी नंबर फॉर दैट. हम उसको करते रहते हैं, लेकिन वो अभी फंक्शनिंग नहीं है. तो मतलब वो कंपनी हमने स्टार्ट की थी और हमने उसमें 2 लाख रुपए का रेवेन्यू भी किया था. तो मैं एक्चुअली क्या किया हमने कि एक मैन्युफैक्चरर ढूंढा which was based in Mumbai. So he manufactured that health supplement for us. We actually got license for that, FSSAI license. और उसके थ्रू हम सिर्फ मार्केटिंग कंपनी थी. मतलब used to just brand that label, put our label on that bottle and used to sell to doctors. हमने 2-3 लड़के रखे हमारे अंदर में while we were doing job. Okay, I was as a product manager in Somatic. The company name is Somatico. तो वहां पर तो मैंने वो कंपनी स्टार्ट की अपने 2 दोस्तों के साथ. वो भी साथ में ही है, बासित एंड उमर शेख इज आल्सो इज इन दुबई राइट नाउ. आई आल्सो गॉट जॉब ऑफर फ्रॉम दुबई, बट मेरे को जॉब करना नहीं था, तो आई जस्ट डिनाइड इट. तो हमने स्टार्ट किया और मतलब हमको चंडीगढ़ से एक कंपनी थी, मार्केटिंग कंपनी. उन्होंने हमको ऑफर दिया, तो हम 1.5 से 2 लाख रुपए का कुछ ऐसा बिजनेस कर पाए थे. तो उसका भी मेरे को एक्सपीरियंस है. तो अगर समझो आप में कोई कंपनी स्टार्ट करने का सोच रहा है, तो आई टेल यू, आई जस्ट गेट यू थ्रू ए प्रोसेस. आप कैसे कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल अभी क्योंकि क्या होता है कि जब मैं भी बीफार्म में था, तो मेरे को भी मैं अभी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू डू दिस बिजनेस, स्टार्ट देयर ओन कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, राइट. बहुत सारे लोग यहाँ पे. तो मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताऊंगा कि व्हाट एक्चुअली यू कैन डू टू गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट योर ओन कंपनी. तो मार्केटिंग में एक कंसेप्ट है कॉल्ड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. या आप लिख के रख लेना, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. इसमें क्या होता है, जैसा अभी मैंने मेरे दोस्तों के साथ कंपनी स्टार्ट किया था, तो आई स्टार्टेड माय कंपनी विद द बजट ऑफ लाइक 50 to 60,000 रुपीज. वो भी हमने इधर उधर से जोड़ के बहुत मुश्किल से किया था. और मतलब वो तो बेसिक बजट था, लेकिन उससे ज्यादा कई ज्यादा हमने उस पर लगा दिया था. तो मतलब हमारा रेवेन्यू